बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की, गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Almost 2024 is coming to an end and we are moving forwards to 2025. Give me some idea or help me. What should I share with the Sangat in this satsang? ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ what I should discuss today, ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਾਮਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ mostly when the year comes to end, we always summarize the topics which we've done throughout the year. So in other words, I can say we're going to summarize today what we did the whole year, or what was the main topic we used to cover. और वो जो चीज सी, that was challenge, संघर्ष, struggle, hurdles, obstacles. When I saw the families, the faces, then when I tried to flip the pages of the lives, I figured out that's the reality. Really, these people really went through a tough time throughout the year. It's not that everybody went through a tough time. There might be many families who had a good time. But the majority of the Sangat, all the people throughout the world, there is a common thing, challenge, struggle, sangharsh, every minute, every second. It's just like catching the frog. कहते हैं ना, डड्डू ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਇੱਕ ਪਕੜਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਕੜੋ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪਕੜੋ ਤਾਂ ਚੌਥਾ. This is how the problems, the troubles, the struggles, the hurdles, the obstacles are in our lives. So today's a satsang, as I said, when we were doing sadhana, very simple satsang. All time to time, all you guys have to do is just, I'm going to ask you a question and simple words. In one word, you have to say yes or no, true or false. Everybody got it? Yes. So this means dhyan na sunna, answer galat na ho jaye. Some of the wise, the great souls, they portrayed the journey of life as an adventure, achievement, opportunities. But side by side, they said it's not a very smooth way to walk on it. When we were in our early childhoods, there used to be a quotation: life is not a bed of roses. तो हम लोग सोचते थे कि what does that mean? It's not a bed of roses. ये कैसे? What does that mean? Why did the poet use these words? But as we grew, now we understand these words very well.
सच में इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट इट्स फुल ऑफ थॉर्न्स. ये जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, मुश्किल्स है, दे आर कंपेयर्ड टू थॉर्न्स. बट द ब्यूटी ऑफ द रोज इज विद दोस थॉर्न्स. अगर गुलाब के फूल की खूबसूरती है तो इट्स बिकॉज ऑफ दोस थॉर्न्स, उन कांटों के साथ है. इफ इट डजंट हैव दोस तो मे बी nobody will care about that rose. So I'm gonna share few examples, summarize the whole year's satsang, the main points we used to summarize during the satsang, right? So I'm gonna try to figure out few examples. Life is a challenge. Kaise? This is the biggest complaint we all have. जब भी हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, believe me or not, गुरु महाराज जी के चरणों में जब भी हम लोग हमारे आप को झुकाते होंगे, महाराज जी से जरूर शिकायत भी करते होंगे, महाराज जी व्हाट इज दिस, कब इसका अंत होगा? कभी भी नहीं होगा. ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी, ऐसे ही बीत जाएगी. कभी हम टेंशन फ्री नहीं होगे. पर टेंशन फ्री तो तभी होगे जब वो वापस अटेंशन में आएंगे. अटेंशन तो करना नहीं चाहते एंड वी वांट टू बी टेंशन फ्री. So let's share few examples कि life is a challenge how. अगर हम सोचें, the challenge begins from the first day of our birth. It's a challenge. A small child, he has to face so many challenges. A challenge how to walk. A challenge how to speak. उसको सीखना है. A challenge how to drink. A challenge how to write, so many and so on. बच्चे को has a challenge. The child moves a little bit further. जीवन में again there is a challenge. Challenge of a career. मैंने अपने जीवन में क्या करना है? A challenge to go to school. Yesterday I was talking to one of the disciples of Guru Maharaj Ji and she said, nowadays it's winter. Early morning, I have to go to my university. When I go to the bus station, very cold. That's also a challenge. हमारी रोजाना जिंदगी दे विच जो भी चीजां ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं ना, they give us a big lesson. If we ponder on them. ज्यादा ग्रंथों को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं. हम अपने जीवन को पढ़ लें. And we will get millions of lessons from them. And when she said that, oh, at the bus stand it's too cold, तो मेरे को ये point बढ़िया लगा. And I said I shall share with in the satsang. Going to school is a challenge. When we were kids, हमारे मम्मी पापा हमें सुबह सुबह उठाते हैं. That's a challenge. हमें नहीं जाना, हमें और सोना है. I didn't do my homework. I didn't complete my assignment. What will the teacher say? I get bullied over there. Nobody likes me. All these questions, these are all challenges in our life. We have to overcome them. But the question is, do we stop going to school? Yes or no? सुन लिया सत्संग सबने? Very good. It's only 5 minutes. अभी तो नो वैसे उतने बढ़िया ढंग से नो नहीं आया. This means nobody listened. जहां फिर nobody goes to school then. लोगों ने छोड़ दिया होगा स्कूल जाना. Did we stop going to school? Okay, good. Yes? Who said yes? I heard yes. कौन ग्रेट बंदा हो? बलजोत, he said he stopped going to school because of these challenges. Right? I have to see his degrees now. Sach ke jhoot, right? We have to use that light, Baljot. Green or red button. Okay, let's move forward. Job. Because these things we don't learn from the scriptures. ग्रंथों की बात तो कभी कभार हम लोग सोच लेते हैं गप छप है. हमने कौन सा देखा है, किसने देखा है, हम बिलीव करें तो क्यों करें? We need proof because life needs evidence. So these are the biggest evidence of our life.
Going to work. We all work? Right? Doesn't matter we work from home. Doesn't matter we go to work in a car or train or bus. But we go to work. But isn't that a challenge? सुबह सुबह तो फिर भी उठने को मन नहीं करता. Oh my God, do I really have to go? Right? Then all of a sudden मन में क्या आता? Oh no. चेक कम हो जाएगा. Right? How will I afford? मेरे expenses का क्या होगा? I have planned a vacation. Budget कम हो जाए. So many questions come in our mind. कुछ भी हो जाए जॉब से निकाल देंगे. That's the last thing we think. अगर जॉब से निकाल दिया तो और जॉब नहीं मिलेगी. बढ़िया जॉब है. Good benefits. True or false? मैंने तो yes no पूछा ही नहीं. मैंने तो बोला true or false. So you have to be careful. Okay. So that's the biggest challenge. So we still go to job. और यूं ही एंटर किया जॉब में. The lead hand or the manager or the supervisor. इतनी बड़ी लिस्ट दे दी. So you have to finish such and such project, such and such production in 8 hours. That's also a challenge. Oh my God, अगर नहीं किया तो कल बुलाएंगे नहीं. अगर नहीं किया तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा. So many things मेरे को घर ना भेजते हैं. Again, that's a challenge. I'm just going to share small our daily life things. So that's a challenge too. Behind all these challenges, the main point which I want to share is, do we give up? No, right? क्योंकि हमें पता अगर give up हो गए तो we won't survive. जीवन में जीने के लिए ये संघर्ष करना पड़ेगा. So let's move a little bit forward. Financial. Sometimes हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है. We have a financial challenge. But what do we do? क्या हम चोरी करनी शुरू कर देते हैं? Why not? ये तो मैंने वैसे सुबह बोला नहीं था कि I'm gonna ask why not. बट मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि why not? क्योंकि हमें ये दी हुई सोचने के लिए. But we find the best way to overcome this struggle in our life, to overcome this hurdle, this जो मुश्किल समय हमारे जीवन में आया है. We might ask our friends for a loan. We might ask the bank for a loan on high interest. So many things. But we do make an effort. Don't we? Good answers going on. Okay, further. Financial solved. Now, health issues. That's also a challenge. Biggest challenge. Something might happen to our health. Do we give up? Or do we go to the doctor? We go to the doctor. Here again, what does the doctor do? We go to the doctor. I was thinking, and I might ask all of you, throughout this year, there might be some of our devotees who might have faced some major health issues, who might have gone to the hospital, who might have been hospitalized. I'm not going to ask who, but there might be few of us. So when we go to the doctor, when we go to the hospital, when we have some symptoms, what is the first thing the doctor does? Okay, checkup, that's good. Okay, how does he do the checkup? He says, I have to run some tests, right? What do we say? We say, okay, डॉक्टर जी करो टेस्ट जितने भी करने हैं, no matter. अब अगर यही क्वेश्चन गुरु महाराज जी बोल दें, and what do we say? No, कभी ओके नहीं होती. That's wrong answer. Red light.
We will say, Maharaji, why? Why me? Why not he or she? Right or wrong? Yeah. So we go to the doctor. The doctor said, I have to run some test before I start my treatment. And that's also a big challenge. Everybody getting the point? Throughout the year, how many of you got a driving test, driving lesson, driving license? Okay, let's say at least one person. If I have to ask her, did you just sit at home and you got the license? No. She had to go through some lessons. She had to study. She had to pass the test. And that wasn't easy. Maybe many times failed. But did she give up? No, because she doesn't like to travel in a bus. It's very hard. She wants a car. तो कार के लिए तो लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस के लिए we have to face all those challenges. We have to clear the test. Are we on track? Getting the points? Awake? Good. Okay. Another example. I'm just thinking which example I should share now. Okay, let's go in our kitchen. Let's say the sisters every day, every Sunday, we have to prepare langar over here. And nowadays it's a very big challenge. Believe me. Winter, everybody busy, some health issues, less manpower. We are facing all these challenges. But did we stop the langar? Do you want to stop the langar? Then what do we have to do? Of course. आप ही के मुंह से सुनना चाहती हूं कि क्या करना चाहिए. आप सोचोगे इसका सत्संग के साथ क्या मतलब है? It does. Because this is a satsang. Satsang is a awareness. Satsang is jagran. Satsang is that tonic जो हमें टाइम टू टाइम चाहिए. कभी कभार हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती and we rush to the tablet cabinet and we grab a vitamin. Shoo. And after that हम सोते हैं, oh, now I'm feeling much better. So satsang is like that tablet. After 7 days we get that tablet and for the next 5 days at least we are okay. 6th day again we feel weak. Then again the 7th day comes, again a new vitamin is given. B12. वैसे usually everybody take multiple vitamin, right? उसमें सब कुछ आ जाता है. So satsang is also multiple vitamin. उसमें सब कुछ आता है. Okay. Once a person went to a shop, an antique shop. तो उसमें he saw so many different decorative pieces. And one of the decorative piece was so attractive that the customer wanted to buy it. जब उसको buy किया गया, the decorative piece was so happy, but the friend who was next to that antique decorator, he said, oh my friend, why are you so happy? He said, because today I'm going to a certain person's house. I'm going to be a decorative piece in that person's house. But all of a sudden that piece turned sad. And now the other friend asked that antique piece, now what happened? He said, I just remembered something. I just remembered my past. I just remembered all that struggle, all those challenges, all those hurdles that I faced to come to this shop. और वो कोई other नहीं था. Usually we give an example of a matka, एक घड़ा. Is the life of that matka easy?
So much संघर्ष. कैसे एक कुम्हार मिट्टी ਨੂੰ ਪੱਟਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਦਾ, then that clay has to go on that spinning wheel and has to enter into the high temperature of heat. तब जाके वो मटका बनता है. And after that we decorate and we bring it to our house as a decorative piece. Not easy job. आप लोगों के सेफ में कुछ ऐसा पड़ा होगा that's very very valuable. बहुत पैसे खर्चे होंगे आपने, especially the sisters. गहने made of gold, but that piece of metal to come to your safe had to go through so many challenges, so many struggle. When that piece of metal went in the hand of a goldsmith, what did the goldsmith do? उसने उसको यूं ही गहने बना दिए उसके. There was a process. There were some steps through which he had to pass that metal to make it shine, expensive, valuable. जिसको आज हम संभाल के रखते हैं ना, and we ask, oh my God, कितने बढ़िया डिजाइन के आपने पहने हो ये जेवर, कहां से लिए, किस जौहरी की दुकान से लिए, how much did you expend? So much we ask about that. Small examples these are. एक कोयला है, उसको पकड़ते हैं तो हमारे हाथ को काला कर देगा. But that when that coal has to go into the fire, तो क्या बन जाता है? लाल. उसकी भी कीमत पड़ जाती है. But has to go into the fire. Has to. These are few examples. Let's move forward to some other personalities. ये तो मैंने सोने की बात कर दी, माटी की बात कर ली, कोले की बात कर ली. Let's take some examples of the great personalities जिनका हम नाम बड़े आदर सत्कार से लेते हैं. For example, Abraham Lincoln. Many examples, many examples. I'm just picking up few. He became the president of US. But was his life easy to become the president? No, he had to go through so many hardships, step by step, and finally he got that position. Another example of Aruma Senha. It is said that in one of the train robberies, she was thrown out of the train and she lost her leg. But she was the first female amputee to climb Mount Everest. Did she give up? Did she end her dreams? No more, I cannot fulfill my dreams. But no, she faced all the struggles, all the challenges in her life. And she won the Padma Shri award too. Mary Cruz, a female scientist, there was a gender discrimination during those times. But did she give up? No. She faced everything and she was the first female to win the Nobel Prize. Florence Nightingale. During her time, the females were not allowed to do the profession of nursing. But did she end up her dreams? No. She faced them. She faced all the challenges of her life and set a good example for us. Who else shall I share? Anyone else wants to share anything? Okay, those were the scientists or the great souls, right? Let's go to the different yugs of the bhaktas. प्रहलाद. आज प्रहलाद की हम लोग पूजा करते हैं. We give examples to our kids कि प्रहलाद जैसा बनना है. पर प्रहलाद जैसा बनने के लिए are we prepared to go through all those hurdles, all those struggles that प्रहलाद has to face? वो यूं ही थोड़ी भक्त बन गया था. He had to go through all those things. क्योंकि life is not a bed of roses.
Let's forget everyone. Let's forget everything and just close our eyes and get a picture of Shri Ashutosh Maharaj Ji in front of us. He is Brahm. हम कहते हैं महाराज जी ईश्वर है, महाराज जी परमात्मा है. बट क्या महाराज जी के जीवन में संघर्ष नहीं आया? क्या महाराज जी को चैलेंजेस का फेस नहीं करना पड़ा? ऑफ कोर्स महाराज जी हैड टू. वी ऑल नो कि महाराज जी को कितना संघर्ष करना पड़ा और करना पड़ रहा है. मान लीजिए हमने वी वर नॉट द विटनेस कि जब महाराज जी वेंट टू द हिमालयस, वी वर नॉट द विटनेस. वी डू नॉट नो कि व्हाट महाराज जी फेस्ड. बट फ्रॉम 84 टिल नाउ we all are the witness. Majority of us. कैसा संघर्ष, all those challenges. तो क्या महाराज जी ने मिशन को बंद कर दिया कि no, I can't? Yes or no? सोगे? Yes or no? जैसे ही आपकी आवाज कम हो जाएगी तो I will stop too. ठीक है? This is also one of the things. When Lord Rama came, Lord Krishna came, सभी के जीवन में this main thing was common, संघर्ष. तो हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? How can we always complain to Guru Maharaj जी कि महाराज जी why me? मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? We should be very, very fortunate, brothers and sisters, कि महाराज जी ने हमें वो अवसर दिया है कुछ बनने के लिए. Although our life is a struggle, but Maharaj Ji is always with us. He's always with us. So we have to be very, very fortunate. ऐसे मेरे को एक छोटी सी बात याद आ गई. Once there was a crow. कां. Nobody likes a crow, right? कोई कां को पसंद करता है? नो, ओके, बलजोत ही करता है. आज तो भी सब कुछ स्कूल भी यही नहीं गया तो क्रो को भी यही पसंद करता है. दैट्स गुड बलजोत. ओके ओके. द क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच crying, and under that branch there was a saint sitting. जब उसके आंसू सेंट की झोली में पड़े तो सेंट looked up and he said, oh my God, why? What happened, my friend? Why are you crying? हम भी, ये हमारी थोड़ी सी स्टोरी मिलती जुलती है, ध्यान से सुनना. द क्रो केम, ही सेड, ओ होली मैन, क्या बताऊं आपको, महाराज जी हमें एक बार अवसर दे दे, है ना, क्या बात है. हम फिर महाराज जी की नहीं सुनते, बस अपनी सुनानी शुरू कर. महाराज जी ये हो गया, महाराज जी वो हो गया, महाराज जी ऐसे हो गया, महाराज जी वैसे हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. तो महाराज जी कहते हैं अरे भाई मेरे को भी मौका दो कुछ बोलने के लिए. तो हम उस समय भूल जाते. सो सेम थिंग हैपन विद दैट क्रो. उसने तो झड़ी लगा दी कि क्या बताऊं आपको, आई एम सो अपसेट, अ बिग लिस्ट. और उसमें ही हैड वन फ्यू कॉमन थिंग्स. ही सेड, मेरे काले रंग को कोई पसंद नहीं करता. नोबडी लाइक्स माय ब्लैक कलर. व्हेरेवर आई गो दे से गो अवे. तो मैं क्या करूं? आई एम सो फेड अप विद ऑल दीज थिंग्स. मेरे को ये जीवन नहीं चाहिए. आई हैव टू एंड माय लाइफ. अब I give up. The holy man, out of pity, out of mercy, he said, don't do that, my friend. I have a solution for your problem. I can change you to another species. And the crow became very happy. He said, oh, really? वो कहते, yeah, आप बताओ आपको क्या बनना है. महाराज जी भी हमसे अगर ये पूछे, हम बोलेंगे महाराज जी वी विल कंपेयर टू समबडी. राइट वे हमारे दिमाग में आएगा, वो उसकी जिंदगी बड़ी है हमसे, महाराज जी मेरे को उसके जैसा बना दो. वो बन गया. ओ माय गॉड, जब पता चलता वो तो मेरे से भी ज्यादा गड़बड़ वाला है, फिर पछताते महाराज जी ये मैंने क्या कर दिया. बट दिस टाइम दिस सेंट डिडंट डू दिस. वो बोलता है ओके आपको मैं एक स्पीशी में आपको चेंज कर सकता हूं, तो बताइए क्या चाहिए आपको. एंड ही सेड, आई एम ब्लैक, मेरे को स्वान बना दो, हंस बना दो, सफेद वाइट, लोग मेरे को पसंद करेंगे. He said, okay, before I do that, why don't you go to the swan and ask, okay, are you happy, satisfied, you don't have any problem in your life,
योर लाइफ रन्स वेरी स्मूथली. कहता ठीक है, आप यहां से जाइए मत, आई विल बी बैक. ओ संत जी बोलते घबराइए मत, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप अपना काम करके आओ. So he went to the swan and said, friend swan, I have a question. I've been given an opportunity to change myself into your species. So I have a question. Are you happy? Are you satisfied? But मेरे को तो लगता है you're very happy. You have white color like milk. Everybody likes you. The swan said, no, 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 no. Don't do this mistake. I'm not happy. Why? He said, I don't like my white color. I see so many colors in this nature. I want to be colorful. उसकी भी शिकायत थी, right? तो ये हमारे लिए इट्स अ लेसन कि कभी हमें महाराज जी मौका दे दे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो कहते देन वेयर डू आई गो? वो कहते ऐसे कीजिए, आप पैरट के पास जाइए. पैरट इज अ कलरफुल एंड आई थिंक पैरट इज हैप्पी. सो द क्रो क्विकली फ्लू टू द पैरट एंड आस्क्ड द पैरट, are you happy? I've been given a chance to change myself into a parrot. I have a question. Are you satisfied? Are you happy? You have no problems? All those same questions. The parrot said, no, my friend, don't do this mistake. I said, why? लोग मेरे को पिंजरे में कैद कर लेते हैं. I lose my freedom. I'm not happy. I have to face all those struggles, those challenges to get myself out of this cage. I long for freedom. He said, okay, really? Then where do I go? After thinking for a while, the parrot said, why don't you go and see a peacock? I said, अच्छा, peacock? मोर के पास जाना पड़ेगा अब. So where can I find a more? Peacock कहाँ मेरे को मिलेगा? So after thinking for a while, he said, okay, I think I can go in a zoo and I can see a peacock in a zoo. So went into the zoo, saw a peacock, and he said, oh my God, now I can definitely change myself into a peacock. So beautiful, this peacock. When the peacock danced, the people are happy and everything. So many things came in the mind of the crow. So he asked the peacock, are you happy? Are you satisfied? Same questions. The peacock said, why are you asking? Because I've been given a chance to change myself into one of the species. So I think I want to change into a peacock. The peacock said, my friend, please don't. Okay, कहता अभी यही क्वेश्चन है, please don't. Why? What happened? कहता मालूम है जब they pluck my feathers, मेरे को कितनी तकलीफ होती है. How painful it is. Also, I have to dance in front of everybody all the time to make them happy. Nobody cares about my tears. So the meaning is that everybody had a complaint. Everybody had a problem. No one was satisfied. मैं जाने दुख मुझको दुख सबाया जा गुच्चे चढ़ चढ़ देखे कर करे हो यज्ञ. Then the crow came back. And the saint said, okay, my friend, I am ready. Are you ready? He said, thank you so much. I'm okay as I am. At least मेरे को ये तो पता कि मेरे को क्या problems है, मेरे क्या संघर्ष है, मेरे क्या challenges है. I can solve those. किसी और की और problem ले लूंगा तो how will I survive? No, thank you, I'm okay. So whenever we are given this opportunity by Guru Maharaj Ji, okay, बताइए आपको इतनी परेशानी, आपको क्या चाहिए, तो हमें क्या कहना है? Okay, I think only today he wants to do everything, nobody else. किसी और को सिमरन साधना नहीं चाहिए. भाई एक बात है, 25 में एक संकल्प लीजिए, ये शर्म शुर्म सब कुछ घर छोड़कर आया करो. हम वी आर अ फैमिली. हम तो सत्संग इस तरह से कर रहे हैं कि हम लोग इंजॉय करें इस चीज को, अंडरस्टैंड भी करें, सत्संग का सत्संग भी हो जाए, एंड वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली. जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा, टुडेज सत्संग इज जस्ट अ समरी ऑफ ऑल 2024, जो चीजें हमने फेस की हैं, एंड अमंग ऑल दोस द चैलेंजेस, सभी के जीवन में ये संघर्ष. सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी. तो आप लोग भी थोड़ा मेरे को हैप्पी कर दो, और उसके लिए तो बस मैं यही यस एंड नो ही आपसे पूछ रही हूं, राइट? ठीक है. तो कभी भी महाराज जी के पास जाने का मौका मिले तो हमें महाराज जी से क्या मांगना कि महाराज जी आपने हमें यहां रखा है, थैंक यू सो मच, बट कभी भी अपने चरणों से हमें दूर मत करना, बिकॉज देन ओनली वी कैन फेस ऑल दीज थिंग्स इफ वी हैव योर ग्रेस.
उसके बिना हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते. We have to give ourselves to Guru Maharaj, brothers and sisters, to make our life easy, smooth and happy. तो बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. आशु पिता की बन संताने, आशु पिता की बन संताने, हम जन्म जन्म संग आएंगे. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. उसने पकड़ा हाथ है ताकि ठोकर खाना गिर जाए, ठोकर खाना गिर जाए, ठोकर खाना गिर जाए. लक्ष्य भेद ना होगा ताकि इम्तिहान हम दे पाए, इम्तिहान हम दे पाए. उसने पकड़ा हाथ है ताकि ठोकर खाना गिर जाए. लक्ष्य भेद ना होगा ताकि इम्तिहान हम दे पाए. हम जीवन को गुरु चरणों में, हम जीवन को गुरु चरणों में अर्पित कर सफल बनाएंगे. घर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. पिता ने सौंपा कार्य पुत्र को, यदि पूर्ण ना कर पाए, यदि पूर्ण ना कर पाए. बात सदा ये याद रखो, वो नालायक ही कहलाए, नालायक ही कहलाए. पिता ने सौंपा कार्य पुत्र को, यदि पूर्ण ना कर पाए. बात सदा ये याद रखो, वो नालायक ही कहलाए. गर उतर सके हम खरे तो सच में, गर उतर सके हम खरे तो सच में वीरभद्र कहलाएंगे. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे. गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे.
द्वार खुल जाएंगे। घर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे। घर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे। बन आशुतोष की संतानें, हाँ, बन आशुतोष की संतानें, हम जन्म जन्म संग आएंगे। घर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे। घर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे। घर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे। हर बार द्वार खुल जाएंगे, हर बार द्वार खुल जाएंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भजन हमने श्रवण किया। गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे। वर्ष का अंत चल रहा है और कहीं ना कहीं हम नजदीक जा रहे हैं उन घड़ियों के जब हमें हमारे गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे, वे हमारे सन्मुख होंगे। लेकिन समय के साथ साथ हमने अपने आप में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में गुरुदेव के आदर्शों को उतारा अथवा नहीं। प्रत्येक रविवार को विचारों को सुना, गुरुदेव की प्रेरणाओं को श्रवण किया, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कितना उतार पाए, इस पर मनन चिंतन करने का समय है। जब वर्ष का अंत होता है तो कुछ रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं कि हम कुछ संकल्प धारण करेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए सजग होंगे, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए सजग होंगे। लेकिन होता क्या है, थोड़ा जोश ऊपर होता है। दीदी ने अभी कहा कि थोड़ा भूलक्कड़ है हम, थोड़ी देर तो याद रहता है कि सुना है, गुरुदेव की प्रेरणाएं मिली हैं, हमने जागृत होना है। लेकिन वहीं कुछ समय बाद जब मन का, बुद्धि का, इस संसार के वातावरण का प्रभाव हमारे मन पर होता है, तब कहीं ना कहीं ढीले ढाले पड़ जाते हैं, भक्ति मार्ग में पीछे हट जाते हैं। ये गुरु दरबार बड़े भाग्य से हमें मिला है, ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। पूर्ण गुरु मिल गए, गुरु का पूर्ण दरबार मिल गया, और यहां आकर भी अगर हम अधूरे ही रह गए तो ये दुर्भाग्य होगा। गुरु महाराज जी के श्री वचनों की एक पंक्ति लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि एक साधक के हृदय में जितना प्रेम गुरु के लिए होता है, उतना ही प्रेम उसके हृदय में गुरु दरबार के प्रति होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि गुरु दरबार में आना ही हमारे प्रेम का सूचक है। हम गुरु दरबार में आते हैं इसीलिए क्योंकि हमें गुरु दरबार से प्रेम है। लेकिन आज टटोलेंगे अपने आप को कि कहीं ये प्रेम केवल कुछ और तो नहीं, दिखावा तो नहीं, यह वास्तविक प्रेम है।
गुरु महाराज जी से प्रेम करना यह दिखाता है कि हम यहां बैठे हैं। गुरुदेव का प्रेम हमें यहां लाकर बिठाता है। लेकिन गुरु दरबार से प्रेम एक शिष्य को, एक साधक को वास्तविकता में उसे साधक बनाता है, उसे शिष्य बनाता है। हम कुछ उदाहरण लेंगे योगानंद परमहंस जी के जीवन से। हम सभी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी होगी। उसमें बहुत सी घटनाएं योगानंद परमहंस जी के जीवन की आती हैं। उन्हीं में से कुछ घटनाएं हैं। योगानंद परमहंस जी, उन्होंने एक बार एक संस्था का निर्माण किया। योगदा सत्संग सोसाइटी नाम की संस्था थी। तो उस संस्था का शुरुआती दौर जब चल रहा था, तो उस समय में स्वामी जी को बहुत कठिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे, क्योंकि धन की कमी के कारण वहां की जो व्यवस्था थी वो भी चला नहीं पा रहे थे। एक दिन हताश निराश होकर बैठे थे, तभी एक सज्जन आए और कहने लगे कि स्वामी जी, लगता है आप बड़े परेशान हो, मैं आपकी परेशानी का हल निकाल सकता हूं और शायद भगवान ने ही मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन उस सज्जन की नीयत जो थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो उस संस्था को खरीदना चाहता था। तब स्वामी जी के आगे उसने एक प्रस्ताव रखा कि स्वामी जी, धन राशि मैं दूंगा, धन मैं लगाऊंगा, लेकिन जो आप संस्था का संचालन करेंगे वो मेरे हिसाब से करेंगे। तो स्वामी जी ने जैसे ही सुना तो योगानंद परमहंस जी कहने लगे कि ये संस्था किसी व्यक्ति के कारण नहीं बनी और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा बनी है। ये संस्था मेरे गुरु की कृपा के द्वारा बनी है और गुरु की कृपा ही इसे चलाएगी। ऐसा सुनना था। वो व्यक्ति खूब जोर से हंसा और कहने लगा, लगता है स्वामी जी आपके गुरु की कृपा कम पड़ रही है संस्था चलाने के लिए। और एक कटाक्ष उन्होंने कहा और चले गए वहां से। लेकिन स्वामी जी ने धैर्य नहीं छोड़ा। योगानंद परमहंस जी ने निरंतर गुरु के चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव, आपकी दिशा निर्देश में ये संस्था शुरू हुई है, तो अब कैसे चलेगी हम नहीं जानते। प्रार्थना निरंतर करते रहे स्वामी जी। तब क्या हुआ, वो ही सज्जन जो आए थे, हम देखें कि जब प्रभु किसी को माध्यम बनाता है तो वो किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। तो वो ही सज्जन जो कटाक्षपूर्ण वाक्य बोलकर गए थे, इतने कटु वाक्य वचन बोलकर गए थे, वे एक मित्र के पास जाते हैं और जाकर सारी घटना सुना देते हैं और कहते हैं कि संस्था अच्छे से चल नहीं रही और मैं खरीदना चाहता था। मैंने प्रस्ताव रखा, लेकिन स्वामी जी का आगे से रिप्लाई ये था। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना, हृदय में करुणा भाव पैदा हुआ और सोचा कि कितने महान आदर्श होंगे उस योगी के, कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये धन राशि देने के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि संस्थान अच्छे से नहीं चल पा रहा, और फिर भी वो अपने आदर्शों पर, अपने गुरु के वाक्यों पर टिके रहे। मैं ऐसे योगी के दर्शन करना चाहता हूं। तो वो सज्जन जो उनके ही मित्र थे, वो जाते हैं अगले दिन योगानंद परमहंस जी के पास और जाकर उनके चरणों में नमन करते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से कहते हैं कि स्वामी जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा अगर मैं तुच्छ भेंट कुछ इस संस्था के लिए दे पाऊं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस संस्थान के लिए क्या कर सकता हूं। तो बड़े ही श्रद्धा भाव से वो व्यक्ति आया था और
वो किसने प्रेरणा डाली उसके भीतर? गुरु ने। क्योंकि परीक्षा स्वामी जी की हो चुकी थी। स्वामी जी के पास जो प्रस्ताव आया था वो भी गुरु की एक परीक्षा थी, लेकिन उस परीक्षा में स्वामी जी उत्तीर्ण हुए और साथ ही समाधान भी मिल गया। ये केवल इतिहास में घटित होने वाली घटनाएं नहीं हैं, ये घटनाएं आज भी ज्यों की त्यों घटित होती हैं। एक बहन जो हरियाणा की हैं, उनके रूम का रेंट कम पड़ रहा था, रूम का रेंट देना था उन्होंने, बहुत परेशान थी। जो उनके ऑनर थे होम के, उन्होंने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि या तो सामान उठाकर चले जाओ या फिर मुझे मेरा रेंट दो। 2 महीने से रेंट नहीं गया था। उन्होंने प्रार्थना करी गुरु महाराज जी के चरणों में और आश्रम में जाकर सेवा करने लगी। किसी को नहीं कहा, कोई और उनके कोई सगे संबंधी थे भी नहीं, वो अकेली थी। तो प्रार्थना कर ही रही थी, प्रार्थना की, थोड़ी सेवा की, साधना की, वापस आ गई। तो रात के 10 बजे उसका दरवाजा खटखटाया किसी ने। देखा उन्हीं के एक संबंधी थे जिन्होंने एक मूर्ति का, भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करके वो पूरे नगर में एक झांकी निकालते हैं, सबको दर्शन करवाते हैं मूर्ति का। तो जो उनका रिचुअल था वो कर रहे थे और उनके घर के बाहर आकर ही एकदम तूफान और बारिश शुरू हो गई। जो भी उन्होंने रथ में रखा हुआ था वो सब गीला हो गया। तो उनको याद आया कि यहाँ पे वो बहन रहती है, तो उसका दरवाजा खटखटाया और कहने लगे कि बहन तू मुझे मदद कर दे, ये जितना भी सामान है वो सारा अंदर रखवा, तो बहुत देर हो गई थी आज हमें, तो मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है। तो उसमें जो पैसे लोगों ने चढ़ाए थे, तो वो पैसे बहुत सारे थे, वो भी गीले हो चुके थे। तो वो सारे उन्होंने फैलाए सुखाने के लिए, और भी सामान था वो सारा रखा अपने घर में। तो जैसे ही सुबह हुई, वो पैसे सूख चुके थे, सब सामान ठीक ठाक था। तो वो जो व्यक्ति थे, उनके संबंधी थे, वो आए। जैसे ही वो सेवा सारी इकट्ठी कर रहे थे, उसमें से कुछ पैसे उन बहन को दे दिए। कहने लगे कि बहन तूने मेरी बहुत मदद की रात, तो ये पैसे तू रख। और वो बहन बताती है, ना 1 रुपया ज्यादा और ना 1 रुपया कम, जितना रेंट उस बहन का बनता था वो उतने का उतना रेंट उनके हाथ में पकड़ा कर गए। एक माध्यम बना। ये माध्यम किसने बनाया? गुरु ने। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जब साधक का अडिग होता है तो वो मार्ग खोल देता है। कितना भी अवरुद्ध कोई क्यों ना कर ले, एक साधक का मार्ग कभी वो रुका नहीं रह सकता। उसे खोलने के लिए स्वयं गुरुदेव आते हैं। माउंट वाशिंगटन में योगानंद परमहंस जी ने फिर से एक आश्रम खोला। तो वहां जब आश्रम बना था, वहां बिजली के बिल की जो यूटिलिटीज होती हैं तो वो भर नहीं पाए। तो वहां से लेटर आ गया, लेटर इशू हुआ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कि या तो आप बिजली का बिल भरो या फिर ये सारी जो आपकी जमीन है वो एक्वायर कर ली जाएगी। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, केवल क्या किया, आश्रम से बाहर अकेले निकले और 15 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान में गए। वहां एकांत में बैठ गए, ध्यान कर रहे थे, आंखों में आंसू भी थे कि गुरुदेव इतने चैलेंजेस आप दे रहे हैं, इतने ये परिस्थितियां आ रही हैं, आपकी आज्ञा मानकर तो मैंने यहां संस्था शुरू की है, लेकिन अब आप ही बताएं कि मैं इसको चलाने के लिए धनराशि का प्रबंध करूं या फिर मैं अपने इस ज्ञान मार्ग का प्रचार प्रसार करूं। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। अकेले स्वामी जी वहां पर दुविधा में फंसे हुए, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास कि गुरु है, वो करेगा। 24 घंटे
24 घंटे स्वामी जी वहीं बिना कुछ खाए पिए, बिना रेस्ट किए वहीं बैठे रहे। 24 घंटे के बाद उनको भीतर से गुरुदेव की आवाज आई कि तू चिंता क्यों करता है, ये कार्य तेरा नहीं है, ये कार्य जिसका है वो स्वयं संभाल लेगा। तो स्वामी जी वापस आते हैं और वापस आके जब उन्होंने देखा, उनके मेल बॉक्स में एक चेक पड़ा था और नीचे लिखा था अ गिफ्ट बाय मिस्टर लिन। तो मिस्टर लिन नाम के व्यक्ति ने वो चेक दिया था और चेक की जो राशि थी वो भी उतनी ही थी जितनी बिजली का बिल भरना था। तो जैसे ही स्वामी जी ने देखा और बिल भरा और अपने जो वहां प्रचारक थे उनको, सबको, सेवादारों को कहा कि जैसे ही मिस्टर लिन नाम के व्यक्ति यहां आते हैं तो उन्हें तुरंत मेरे पास लेकर आया जाए। तो मिस्टर लिन वहां एक दिन आए और जैसे ही वो आए, आकर उन्होंने जैसे ही स्वामी जी के कक्ष में पैर रखा, उन्हें एक प्रकाश, बहुत दिव्य प्रकाश दिखा। उसमें उन्होंने लाड़ी महाशय जी के दर्शन किए, जो उनके गुरु के गुरु थे। युक्तेश्वर गिरि जी महाराज के गुरु थे लाड़ी महाशय जी, और योगानंद परमहंस जी युक्तेश्वर गिरि जी महाराज जी के शिष्य थे। तो जैसे ही उन्होंने लाड़ी महाशय जी के दर्शन किए, एकदम से वो लेट गए साष्टांग मुद्रा में और कहने लगे कि ये ही वो सज्जन है, ये ही महापुरुष है जो मुझे कल रात स्वप्न में दिखे थे और ये मुझे 3 दिन से हर रोज दिख रहे हैं। तो एक दिन दिखे थे, वो कहते कि इस संस्थान के लिए तूने इतनी धनराशि देकर आनी है, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मिस्टर लिन थोड़े परेशान थे क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, तो वो बहुत ही डिप्रेशन में थे। तो जैसे ही उन्हें दर्शन दिए लाड़ी महाशय जी ने, उसी दिन के बाद उनके मन की अवस्था जो थी वो ठीक होने लगी। वो डिप्रेशन से बाहर आ गए और कहने लगे तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। अभी जब हम साधना कर रहे थे तब दीदी ने एक व्यक्ति की बात सुनाई थी कि वो कहने लगे कि मुझे दर्शन हो गए तो उससे क्या होगा, मेरा क्या बेनिफिट है। तो दर्शन का क्या बेनिफिट है? अब हम देखें, उसे लाड़ी महाशय जी के केवल दर्शन हुए थे और वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। जब कोई वस्तु अपने स्रोत से वापस जुड़ती है, और हम सभी जानते हैं हमारी आत्मा का स्रोत परमात्मा है, और परमात्मा जब साकार स्वरूप धारण करके गुरु रूप में धरती पर आता है, क्या उसके दर्शन साधारण होंगे? जब उनका दर्शन करेंगे तो उनके दर्शन साधारण नहीं होते, बड़े से बड़े रोग दूर कर देते हैं। तभी कहा एक नजर गुरु की कर डाले है, धूल पे पड़ के कर डाले उसको चंदन कोई क्या जाने। गुरु की एक कृपा दृष्टि वो धूल को भी चंदन बना सकती है। हम सभी क्या थे? हम सभी विचार करें कि हम क्या थे गुरु से जुड़ने से पहले, और आज गुरु ने क्या बना दिया है। कंकर से हीरे बनाता है और अपने मुकुट में जड़ लेता है। ऐसी महिमा केवल गुरु की हो सकती है, ब्रह्मनिष्ठ संत की हो सकती है, उस शक्ति की हो सकती है जो शक्ति इस धरा पर हमारे कल्याण के लिए आई है। ये जो आश्रम बना है, संस्थान बना है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, किसके लिए? गुरुदेव का कोई लाभ नहीं, लेकिन ये हमारा कल्याण है। अगर हम जुड़े रहते हैं, ये हमारा कल्याण है। गुरु दरबार से जुड़ना और गुरु दरबार से प्रेम करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे? एक व्यक्ति सामान लेने दुकान पर जाए तो दुकान से सामान लिया और वापस आ गया,
लेकिन एक व्यक्ति जिसका उस दुकानदार से प्रेम है, वो बैठेगा, 2-4 घंटे बैठेगा, बात करेगा, हालचाल पूछेगा, उसकी कुछ समस्याओं का समाधान भी देकर जाएगा, सामान भी खरीदेगा। अब हम यहां पर देखें कि यहां जुड़ना और प्रेम करना दोनों अलग कैसे हैं। हम यहां आते हैं गुरु दरबार में, वहां से एंटर करते हैं। क्या हमारी नजर जाती है कि दरवाजे पर धूल पड़ी है, हम कोई कपड़ा लेके साफ कर दें? हमारी नजर जाती है कि ये जूते नीचे बिखरे पड़े हैं, उनको उठाकर ऊपर रख दें? हम यहां विचार करते हैं वो जो संघर्ष योगानंद परमहंस जी ने किया इतिहास में, वो ही संघर्ष ना जाने महाराज जी के कितने शिष्यों ने किया होगा। जहां जहां पर भी गुरुदेव के आज आश्रम हैं, उन्होंने भी ये संघर्ष, मैं तो कहती हूं इससे भी अधिक संघर्ष झेला होगा, लेकिन हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। धन्य है वे दिव्य आत्माएं जिन्होंने गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण उतरकर संस्थान को कहां से कहां पहुंचाया। आज जो इस पूरे विश्व में, पूरे धरा पर जहां जहां पर गुरुदेव के आश्रम हैं, वो आश्रम केवल ये शिष्यों का, उनके जो प्रचारक शिष्य हैं, उनके धैर्य का ही ये फल है। और हम अपना कर्तव्य स्वयं देखें, स्वयं निर्धारित करें। होना ये चाहिए कि यहां से एक आवाज गई और हम सारे यहां पर एकजुट होकर इकट्ठे हो गए कि गुरु के दरबार से एक आवाज आई है, अपना कल्याण कर लो। ये नहीं कि यहां जरूरत है, यहां जरूरत हो या ना हो, लेकिन हमें जरूरत है। हम टटोल कर देख ले स्वयं को। यदि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, हमारे जीवन में साधना नहीं है, सुमिरन नहीं है, सेवा नहीं है, क्या होगा हमारा जीवन? सोचकर देख सकते हैं हम। एक होती है जरूरत और दूसरी होती है इच्छा। संडे वाले दिन गुरु दरबार में आना, ये हमारी जरूरत है, आत्मा की जरूरत है। बीच पर जाना, बाहर घूमने जाना, ये हमारी इच्छा है। और जिसकी इच्छा उसकी जरूरत पर भारी पड़ जाए, वह कभी साधक नहीं हो सकता। एक साधक अपनी जरूरत का ध्यान रखता है, इच्छाओं का नहीं। और गुरुदेव का मार्ग, गुरुदेव का ज्ञान क्या करता है? जब कोई जीवात्मा ज्ञान से जुड़ती है, तब जो परिवर्तन उसके भीतर आते हैं, उसके मन के विकार एक एक करके गुरु कैसे निकालता है, साम दाम दंड भेद, हर तरह से प्रयास करता है हमें सुधारने का। हम कितनी बार इस मार्ग पर लड़खड़ाने लग जाते हैं, कितनी बार गिरते हैं, फिर उठाता है, फिर गिर जाते हैं। ये गुरु का धैर्य है, गुरु का समर्पण है। गुरु का क्योंकि पूर्ण समर्पण होता है अपने शिष्य के लिए, आधा अधूरा नहीं होता। हमारा आधा अधूरा समर्पण हो सकता है, गुरु का नहीं। क्योंकि गुरु वो माता है, माता को देखा होगा हमने, अपनी अपनी माँ को तो देखा है सबने, कि कैसे वो सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अपने बच्चे का ही ध्यान रहता है। मेरे बच्चे ने खाया नहीं खाया, मेरा बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा सोया नहीं सोया, अपने बच्चे का ध्यान रखती है। गुरु वो माँ है, किसी ने बहुत सुंदर कहा है विचारक ने, कि 1000 माँओं का दिल, उनकी ममता अगर इकट्ठी कर दी जाए तो वो अकेले एक गुरु के भीतर होती है। हम देखें कि गुरु कितना प्रेम करते हैं हमसे, लेकिन उनके प्रेम का मूल्य कहां तक हम जान पाते हैं? गुरु के दरबार में आकर भी हम अधूरे ही रह जाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं।
आज भी समय है, आज भी समय है, हम संभल जाएं, जाग जाएं। वो बार बार जगा रहा है। हर रविवार को एक आवाज आती है, हर सैटरडे को एक आवाज आती है, मैसेज आता है कि यहां अखंड साधना है, यहां सत्संग है। हम में से कितने यहां पहुंच पाते हैं? साधना में कितने आ पाते हैं? हम कभी कभी ये सोचते हैं चलो सत्संग का समय हो जाएगा फिर चलेंगे। 11 बजे सत्संग है, 10 बजे अखंड साधना है। ये गुरु का लॉस नहीं होगा, हमारा लॉस हो रहा है। सबसे पहले दिन, जिस दिन यहां पर अखंड साधना रखी गई थी, जो संडे वाले दिन सत्संग से पहले सामूहिक साधना जो होती है, उस साधना में, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, उस साधना में ही गुरु महाराज जी की आवाज मुझे सुनाई दी थी कि प्रलय काल की शुरुआत हो चुकी है और ये साधना, ये सामूहिक साधना तुम्हारे लिए वह सुरक्षा कवच का काम करेगा। तुम्हारा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता यदि तुम इस साधना में पहुंचते हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम गुरु के वचनों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, उनको फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और गुरु दरबार का जो रक्षा कवच हमें मिला है, ये गुरु की गोद है। यदि हम, ये अनुभव हम सभी ने किया है कि जब जब हम घर पे साधना करते हैं तो हमारा ध्यान कितना टिकता है? बहुत कम। लेकिन यहां आते ही 10 मिनट की अवस्था जो हमारी होती है वो ऐसी होती है जैसे घर में 1 घंटे की। तो यहां 10 मिनट में ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि प्रत्येक स्थान का एक प्रभाव होता है। ये स्थान वो परम पावन दरबार है, ये गुरु की गोद है। कभी अनुभव कीजिएगा इस बात को कि ये गुरु की गोद है, और वो गोद है जिससे हमें काल भी नहीं छीन सकता। गुरु दरबार में आना, इट मीन्स हमने अपनी सेफ्टी के लिए लाइसेंस ले लिया कि इतना हम यहां पर हैं तो हम सेफ हैं, हम हर तरह से सेफ हैं। और बहुत से अनुभव भी हम सभी के रहे होंगे गुरु दरबार को लेकर। एक बहन, उनका नित्य नियम था, वो प्रत्येक थर्सडे को अखंड साधना में जरूर जाती थी। तो अखंड साधना में बैठी थी, उन्हें एक अनुभव हुआ तभी, और वो रोने लगी। उन्हें अनुभव क्या हुआ कि उनके पति की मृत्यु हो गई है और सारे रो रहे हैं, उन पर वाइट कलर का कपड़ा डाला हुआ है। लेकिन तभी महाराज जी आते हैं। महाराज जी एकदम आके वो वाइट कपड़ा हटाया और उसको बाजू पकड़ के बिठा दिया। बहन रोती है, और जैसे ही साधना से उठी तो वहां जो साध्वी दीदी बैठे थे, उन्होंने पूछा कि बहन जी आप इतना रो क्यों रहे थे साधना में? तब वो बहन बताती है कि मुझे ये अनुभव हुआ है। तब साध्वी दीदी कहते कि आप निश्चिंत हो जाइए, यहां पर गुरु दरबार में जो कोई आता है केवल उसकी सुरक्षा नहीं, उसके पूरे परिवार की सुरक्षा गुरुदेव स्वयं करते हैं। और ये साक्षात प्रमाण है कि जब उन बहन को बाहर निकले, उनके पति लेने आए, तो देखा वो दूसरी बाइक पर आए थे। तो बहन ने पूछा कि दूसरी बाइक क्यों लेकर आए आप, आपकी बाइक कहाँ है? तो वो भाई कहने लगे कि थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो लेकिन जैसे ही उस बहन ने अगले दिन उस बाइक की हालत देखी, उस बाइक की हालत देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो बंदा बचा होगा। और उस भैया को एक खरोंच तक नहीं आई। हम देखें कि गुरु क्या से क्या करते हैं, लेकिन करते कब हैं? जब हमारी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। पूर्ण श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और गुरु दरबार के प्रति अपना प्रेम जताएं। क्योंकि एक व्यक्ति प्रेम करता है, वो सोचता रहे कि मैं प्रेम करता हूं,
लेकिन दिखे ना उसके व्यवहार में, तो हम कैसे मानेंगे कि ये प्रेम करता है? तो वो जताना भी है, दिखाना भी है कि हाँ वास्तविकता में हमें प्रेम है। तो यहां से दीदी साध्वी बहन जी या स्वामी भैया, ये कोई गुरु महाराज जी से अलग नहीं है, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। क्या गुरुदेव उन्हें अपने से अलग रखेंगे? इन्हें माध्यम बनाकर गुरुदेव ना जाने हमें कहां से क्या सेवा लगाते हैं, लेकिन वहां हम अपने मन और बुद्धि के दायरे में उलझकर हम भूल जाते हैं कि यदि गुरु दरबार से हमारा बुलावा आया है, वो बुलावा इसलिए नहीं आया कि गुरु दरबार में हमारी जरूरत है, इसलिए आया है कि उस समय में हमारे साथ ना जाने बाहर क्या होना था और गुरु ने यहां बुलाकर यहां बिठाकर वो काट दिया। तो जब जब गुरु के दरबार से सेवा आए तो हम निश्चिंत होकर केवल हां ही बोलें, यहां पहुंच जाएं, क्योंकि इसमें हमारा ही लाभ है। और आप ये अनुभव करके देखना, हमारा जो मानव मस्तिष्क है ना, वो ये कहेगा तो क्या काम छोड़ दें, सारे काम छोड़ दें, यहीं आकर बैठ जाएं। लेकिन नहीं, हम अनुभव करके देखें, जब जब हम गुरु दरबार में अपना काम कोई छोड़कर भी आएंगे, तब भी वो काम रुकेगा नहीं, वो काम सदा बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा। चलते चलते एक छोटा सा अनुभव और साझा करना चाहती हूं। एक बहन जी थे, उनकी बड़ी मंशा थी कि घर में सत्संग रखवाया जाए, लेकिन घर बहुत छोटा था। तो उन्होंने अपने पति से बात की, तो पति भी मान गए कि चलो सत्संग रखवाते हैं। जो गांव की एक सांझी जगह होती है, जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, गांव में एक सांझी जगह होती है जहां बारात को ठहराया जाता है, जहां कोई फंक्शन रखना हो तो वो भी रखा जाता है। तो उस स्थान पर निश्चित कर दिया गया कि यहां पर रखवा लेंगे सत्संग, और बहनों से बात की गई। 3 दिन का सत्संग था। तो बड़े खुश पति पत्नी, लेकिन हुआ क्या, टाइम के टाइम उन्हें पता लगा 2 दिन पहले कि वहां किसी ने बारात ठहरानी है उस दिन, जिस दिन सत्संग होना था। अब स्थान नहीं था, वो सोचने लगे क्या करें। तो उन्होंने अपनी जमीन में आलू बीज रखे थे, खेत था तो खेत में आलू बीज रखे थे। तो भैया सोचने लगे कि कोई बात नहीं, अब सत्संग कह दिया है तो टालेंगे नहीं, ये कोई बात नहीं, यहीं पे हम नीचे कारपेट बिछा देंगे और सत्संग हो जाएगा। हम सोचेंगे ये सेवा महाराज जी को दे दी। तो वो आलू, जितने एरिया में कारपेट बिछे थे, तो वो आलू नीचे दब गए। आलू के जो पेड़ थे, पौधे थे, वो नीचे दब गए। और 3 दिन वहां खूब सत्संग चला, भजन कीर्तन हुआ और लंगर भी हुआ सारी संगत का। तो जब उस खेत से आलू निकालने की बारी आई, तो आप यकीन मानेंगे, एक तरफ सारे बाकी जमीन के आलू और एक तरफ अकेले उस एरिया के आलू जहां संगत बैठी थी, जहां सत्संग हुआ था। आलू निकालते जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहे। और वो भैया इतने हैरान कि मैंने तो ये सोचा था यहां तो आलू नहीं निकलने वाले। तो लेकिन वो आलू की फसल खराब नहीं हुई, क्योंकि ये कह दिया था कि गुरु के नाम कर दिया। तो गुरु के नाम जो कर दिया, वो उसमें घाटा कैसे हो सकता है, उसमें तो बढ़ोतरी ही होगी, बढ़ेगा। तो हम सभी ये निश्चिंत हो जाएं कि जब जब गुरु दरबार से बुलावा आया है, वो बुलावा गुरु दरबार से नहीं, वो हमारे कल्याण के लिए एक कॉल है, हमारे कल्याण के लिए। एक बार यदि हम इस पर विचार करके देखें, कभी मना नहीं कर पाएंगे। और मना करेंगे, जितनी बार मना किया है
हम देख लें, थोड़ा पीछे घूम कर देख लें कि जितनी बार हमने मना किया है नुकसान ही उठाया है, कुछ ना कुछ बुरा ही घटित हुआ है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी बुद्धि गुरु की बुद्धि से ज्यादा प्रखर है, हमारी सोच संकीर्ण है, लेकिन उसकी सोच अपार है। उसकी सोच संपूर्ण सृष्टि में घूम रही है, ब्रह्मांड में घूम रही है। हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान वो तीनों देख रहा है। लाकर बिठा देता है यहां पर कि आजा तू मेरी गोद में, तुझ पर कष्ट नहीं आने दूंगा, तुझ पे आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन हम बालक है ना, नादान है। बच्चा जिद करता है कि मैंने आग को पकड़ना है, लेकिन मां डांटती है, थप्पड़ लगाती है, गोद में खींचती है कि नहीं, आगे नहीं जाना। लेकिन बच्चा जिद करके अगर गोद से उतर कर भागे, वो आग को पकड़ ले, तो क्या होगा? हाथ जलेगा ना। हमारे कर्म संस्कार 24 घंटे हमारे सिर के ऊपर हैं, वो फल देने के लिए। हम ये ना भूलें, हम कहीं पर भी हैं उन कर्म संस्कारों से बचे हुए नहीं हैं। लेकिन गुरु दरबार में आकर बैठना इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि यहां आ गए तो वो जो कर्म संस्कार थे वो बाहर वेट कर रहे हैं हमारी, वो इंतजार कर रहे हैं कब ये बाहर निकले और कब मैं दोबारा सवार हो जाऊं। क्योंकि काल और माया का प्रभाव गुरु दरबार में एंटर नहीं कर सकता। और यही कारण है जब जब हम साधना में बैठते हैं, यहां बैठते ही मन ठहरता है, बैठते ही मन टिकता है, क्योंकि गुरु की इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं, वो हमें महसूस होती हैं, हमारी आत्मा को महसूस होती है। और आज हम ध्यान साधना में जब बैठेंगे तो सिर्फ इतनी ही हम प्रार्थना करें, मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें। हम ये प्रार्थना करें और जो विचारों को, बहुत ही सुंदर विचारों को श्रवण किया है, उन विचारों को आज आत्मा में पिएं, अंतर आत्मा में उतारें, तभी लाभ होगा। तभी ये जो विचार सुने हैं वो जीवन में घटित होकर हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे, हमारे जीवन को बदलेंगे। इसी के साथ हम सभी गुरुदेव के श्री चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए जयकार लगाते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।